Good morning. Today I'm teaching you social science for class 8th. Now in this book we will study the chapter 2nd of your civics, that is parliamentary form of government. So in this chapter I already explained many topics to you, right, beginning from the Indian Parliament, why parliamentary form of government, President of India, qualification, and how is the President of India elected, turnover of the office, salary, allowances, power of the President, Vice President, and elections, the central legislature, the Speaker and Deputy Speaker, Rajya Sabha, power of the Parliament, and about form of bill to law, Prime Minister and the Council of Ministers, role and function of the Council of Ministers, government's accountability to the Parliament. Okay, now today I'll explain the issue of Minimum Wage Act. Okay, now we know how the bill converts into act. As we know that we have two types of bill. One is ordinary bill and second is your money bill. So ordinary bill are all those bill which are not related with the money, and money bill all those bill which are related with the money. Now here we will discuss about the issue of Minimum Wage Act. So in April 1946, a Minimum Wage Bill Act was introduced in Parliament. This bill act was enacted 2 years later on 15th March 1948. 1946 में एक मिनिमम वेज बिल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, और ये जो बिल था ये पास आउट हुआ, डिस्कशन इसका आफ्टर 2 ईयर किया गया. ठीक है, इंट्रोड्यूस तो ये 2 साल पहले हो गया था 1946 में. देन दिस बिल एक्ट वाज इनैक्टेड 2 years लेटर on 15th March 1948. So this act was a landmark in the labor history of India. तो इंडिया में जो लेबर्स हैं उनके लिए बहुत मेन रोल प्ले किया गया इस एक्ट ने. With the implementation of this act, both the state and the central government agreed on fixation, revision of rates of minimum wage for their employees. तो इस पर्टिकुलर एक्ट में बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ही एग्रीमेंट के थ्रू, दोनों के ही रजामंदी के थ्रू जो एक लेबर के लिए वेज होना चाहिए वो फिक्स किया गया. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज एक्ट 1948 द बेसिक पे वॉज फिक्स्ड एट ₹30. तो जो लेबर होते हैं उनका मिनिमम जो बेसिक पे है वो 30 डिसाइड किया गया विद डियरलेंस अलाउंस ऑफ ₹26 पर मंथ, और इसी में उनका डियरलेंस अलाउंस भी है जो कि 26 पर मंथ है. नाउ दीज न्यू रेट्स ऑफ फिक्स सैलरीज केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1953 एंड वाज सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक रिवीजन, और ये फाइनलाइज और फ्रूटफुली इम्प्लीमेंट किया गया 1953 में. एंड ये भी रखा गया पॉइंट कि टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करता जाएगा, इनको चेंज किया जाएगा. द गवर्नमेंट कुड नाउ फिक्स द सैलरीज फॉर वर्क डन विद इन अ सर्टेन पीरियड इन अ स्पेसिफिक फील्ड. तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज में गवर्नमेंट ने सैलरीज भी फिक्स करी और उनको टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए चेंज किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ. सो दिस एक्ट ऑल्सो डिफाइंस some terms which helped the citizen to understand and interrupt this act. So then after, when people not satisfied, or after so many years when the reforms not took place regarding the salary act, then the changes need or the changes done by the people. अगर हम कह सकते हैं कि अगर एक्ट में कोई चेंजेस नहीं होते आफ्टर सम टाइम तो वो पीपल्स के द्वारा स्ट्राइक किया जाता है, पीपल्स के द्वारा दोबारा से उनको उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है और फिर वो एक्ट या जो भी पर्टिकुलर फिक्स किया पॉलिसी वो चेंज की जाती है.
For example, the term wages refers to all the remuneration capable of being expressed in terms of money. तो जो wages होता है वो हम कह सकते हैं it is one of the way, it is the remuneration, एक capability जो एक particular person earn करता है वो कितनी होनी चाहिए for the labor and for the employees, those who gets the remuneration. This act sought to provide minimum wage to those workers who were working in an unorganized sector and were exploited by the industrialist. तो बेसिकली ये जो एक्ट बनता है वो एक्ट बनता है उन पीपल्स के लिए, उन वेजेस के लिए, उन वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, जहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट. बहुत ज़्यादा काम करने के बाद उनको कम वेजेस मिलता है. और इन unorganized sector, in unhygiene environment, many of the workers do, many of the laborers works, and as per the day basis or as per their capability basis or their work basis, they not get the salary. So these types of acts helps them to get the wages whatever decided by the government for each and every one. So the main aim of this act is to secure the welfare of the workers by fixing minimum wage limit. तो ये जो एक्ट बनाया जाता है ये स्पेशली बनाया है इसलिए जाता है कि जो वर्कर्स का जो वेलफेयर है उसको इम्प्रूव किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग देम अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द वेजेस विच इज़ फिक्स्ड. सो दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया. तो ये जो फिर एक्ट बना वो पूरे इंडिया में फॉलो किया गया. नाउ क्रिटिकल व्यू ऑफ मिनिमम वेज लेजिस्लेशन. अब इसके ऊपर लोग जो लेजिस्लेशन जो पावर्स थी उनके क्या व्यूज़ थे. दिस एक्ट वॉज नॉट इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग वेजेस. तो ये जो एक्ट था ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं था रिगार्डिंग वेजेस, बिकॉज द कवरेज ऑफ दिस एक्ट इज सेलेक्टिव एज इट एम टू प्रोटेक्ट ओनली द वर्कर्स. क्योंकि ये जो एक्ट बना था ये सिर्फ वर्कर को सेव करता था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वॉज द रिविजन ऑफ वेजेस विच वॉज इग्नोर्ड फॉर मोर देन 20 ईयर्स. और बेसिकली जो एक मेन इसमें पॉइंट था कि 20 ईयर्स होने के बाद भी वो रिवाइज नहीं किया गया, इग्नोर कर दिया गया. जितना फिक्स पहले था उतना ही फिक्स वो आज भी था. सो टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स, इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए इट वॉज अमेंडेड इन 1990. दोबारा से वो डिस्कस किया गया एंड इट रिकमेंडेड दैट टाइमली रिविजन ऑफ वेजेस शुड बी डन. और ये डिसाइड किया गया कि वो जो वेजेस फिक्स किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर में वो फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाएगा. ठीक है, बट दिस रिकमेंडेशन वॉज ऑल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स ड्रीम रिमेन्ड अनफुल्फिल्ड. और जब ये फिक्स किया गया, डिसाइड किया गया कि आफ्टर फ्यू ईयर्स देन वी विल चेंज द वेजेस रेट एंड वी विल लुक आउट द साइड ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो, बट स्टिल दीज सेक्टर्स वुड नॉट बी checked, would not be recommended the rule and regulations at all. So still workers' dreams remained unfulfilled. So again in 2006 a parliamentary committee on national rural employment guarantee observed that minimum wages varied from state to state. तो फिर ये रियलाइज किया गया एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू ये एक कमेटी बनाई गई जो कि ये स्टडी करे कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट वर्कर्स जो काम करते हैं जिनका जो कंडीशन ज़्यादा अनहाइजीनिक है तो उनको वेजेस ज़्यादा मिले और जो स्मूथफुली कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो उनका वेजेस अलग हो. तो एज पर द कंडीशन बेसिस द वर्कर्स गेट्स द वेजेस. नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एज वी स्टडीड इन दिस चैप्टर. सो क्विकली रिवाइज्ड दीज टॉपिक्स. फर्स्ट इज नॉमिनल. सो नॉमिनल मीन्स नॉट रियल or informal or we can say ceremonial, okay, for some time, for the few of the time we appoint, that is called nominal, and ceremonial, okay, ceremonial. Then republic, a state whose head is an elected one or instead of a hereditary representative, okay. Republic means a state, एक ऐसा state जिसको elect किया हुआ बंदा चलाता है, ठीक है, not by the हेरिडेड पीपल, जो कि फादर भी उसके किंग थे, नाउ ही इज हैविंग द होल्ड ऑफ द स्टेट, तो दैट इज नॉट द रिपब्लिक. इम्पीचमेंट, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लेड डाउन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेजिडेंट. किसी प्रेजिडेंट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इम्पीचमेंट, नॉट ओनली टू द प्रेजिडेंट बट टू जजेस
and a few other higher authorities also. ठीक है. Then legislature, law making organs of the government, executive, law implementing organs of the government, जो law को बना रहा है, implement करवाएगा. Judiciary, justice imparting organs of the government, apart from the custodian of the constitutions and setting